Hello friends, today we will discuss about the properties of that stationary waves. So you know already when the two progressive waves traveling on the same path but in opposite direction, identical progressive waves traveling on the same path but in opposite direction superimposed with each other. Then a new wave will be formed which will be in the form of loops, that is called as what? Stationary wave. Or again it is called as what? Standing wave. So here we have to discuss the properties of that stationary wave. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर हाउ दिस वेव विल बी प्रोड्यूस. जो डेफिनेशन है वही उसकी पहली प्रॉपर्टी बनेगी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी दैट these waves are produced due to the superposition of two identical either transverse or longitudinal waves traveling along the same path but in opposite direction. Okay, इस पहली प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन करना है अपने को हाउ दिस वेव विल बी गेट फॉर्म. कैसे बन रही है वो? when two identical progressive waves either it is longitudinal or transverse, these waves are traveling along the same path but in opposite direction, that when that waves will be get superimposed, the new wave form, that is the stationary wave. So this is the first property of the stationary wave, that is these waves are produced due to the superposition of two identical progressive wave either longitudinal or transverse wave traveling along the same path but in opposite direction. Then second one, when the two transverse progressive waves superimpose with each other, again it is called as transverse stationary wave. In that transverse stationary wave, the point where the displacement of the particle is maximum, that is called as antinode, and point where the displacement of the particle is minimum, that is called as node. Means transverse wave अगर एक से superimpose हो रही है traveling along the same path but in opposite direction, इस समय जिस मीडियम में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे उस ट्रांसफर स्टेशनरी वेव में वो किस तरह से रहेंगे? कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे अपने को जहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा पार्टिकल का मैक्सिमम, उसे क्या बोलना है? एंटीनोड. और जिस जगह पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है या मिनिमम है उसे क्या बोलना है? नोड. These nodes and antinodes are alternately produced. And the amplitude of vibration increases from node to antinode, or again it will get decreases from antinode to node. Okay, same property is the second हमने क्या बोले थे अपने को भी longitudinal stationary wave. अगर दो longitudinal waves एक एक से सुपरइम्पोज होती है ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उस समय जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? फिर से longitudinal stationary wave. And again there are some points where the displacement of the particle is maximum, that is called as antinode, and again there are some points where the displacement is minimum or zero, that is called as node. Such type of longitudinal stationary waves are produced in case of the air column, vibrating air column, in case of the pipe closed at one end or pipe open at both ends. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते, जो विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस म्यूजिकल विंड इंस्ट्रूमेंट में such type of stationary waves are produced there. The next property, nodes and antinodes are here consecutively produced. Distance between two consecutive nodes is equal to how much? Lambda by 2. दो consecutive nodes का distance कितना रहेगा? Lambda by 2. Similarly, distance between the two consecutive antinodes is equal to again lambda by 2. Means दो
कॉन्जिक्यूटिव नोड में का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 और दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स में का डिस्टेंस कितना रहेगा लैम्डा बाय 2। नोड एंटी नोड क्या तो तुमको मालूम है, जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम या जीरो रहेगा, या जिस पॉइंट पर का पार्टिकल वाइब्रेट नहीं हो रहा है वो पोजीशन में क्या होगी नोड, और जिस पोजीशन में पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वाइब्रेट हो रहा है वो पोजीशन में क्या होगी एंटी नोड। तो ये नोड एंटी नोड इस तरह से यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स में का अगर डिस्टेंस गिव दिया तो कितना मिलेगा अपने को लैम्डा बाय 2, वेयर दैट लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट सुपरपोजिंग वेव। इस जो वेव सुपरइम्पोज हो रही है उस आइडेंटिकल वेव की वेवलेंथ क्या रहेगी यहाँ पे लैम्डा बाय 2, और डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज इक्वल टू हाउ मच लैम्डा बाय 2, distance between the two antinodes is equal to again lambda by 2. Then distance between the node and consecutive antinode, distance between the node and consecutive antinode, ये वाला distance, ठीक है। distance between the node and consecutive antinode, suppose this is the node and this is the antinode, so this distance becomes how much lambda by 4, means node और antinode का distance कितना होगा lambda by 4. Then are the particles in one loop vibrate with the different amplitudes, एक लूप में जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वो सभी डिफरेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होंगे, बट देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस विल बी रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैसी रहेगी सेम, मींस ऑल द पार्टिकल्स विल गेट वाइब्रेटेड इन वन लूप with the same frequency but different amplitude, and the amplitude of vibration increases from node to antinode and decreases from antinode to node. उसके बाद all the particles in one loop are vibrating in the same phase, मींस यहाँ पर पार्टिकल टू पार्टिकल फेज चेंज नहीं होगी। जैसे प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा था, पार्टिकल टू पार्टिकल फेज चेंज हो रही थी, पार्टिकल टू पार्टिकल फेज चेंज हो रही थी, तो उसी तरह यहाँ पर पार्टिकल टू पार्टिकल फेज चेंज नहीं होगी। सभी पार्टिकल्स एक लूप में के सभी पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट होंगे, and the particles in the next loop will be vibrated in the out of phase। इसके एक लूप में के पार्टिकल्स की फेज सेम रहेगी, तो नेक्स्ट लूप में के जो पार्टिकल्स रहेंगे उसकी फेज कैसे रहेगी अपोजिट रहेगी। फेज का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जांपल these are the students which are sitting near each other, एक के पास में से लाइन से स्टूडेंट्स खड़े बैठे हुए हैं। सपोज ये अगर स्टैंड हो गया, ये खड़ा हो गया, ये बैठा है, ठीक है। अब जैसा ये नीचे बैठता है वैसे अगर ये खड़ा होता तो क्या हो गया, इसकी फेज नीचे आ गई, इसकी फेज चेंज हुई कि नहीं, फिर से ये नीचे बढ़ गया तो ये ऊपर उठ गया, समझ लो क्या होगा, फिर से यहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल क्या हो रही है, फेज चेंज हो रही है। जैसा मैक्सिकन वेव्स देखोगे तुमने, जैसा कोई स्टेडियम है, स्टेडियम में मैच चलते रहता है, उस समय सभी बहुत से जो मैच देखने वाले रहते हैं ऑडियंस पूरे लाइन से बैठे होते हैं, जैसा एक खड़ा हुआ उसके बाद बराबर लाइन से सबके सब खड़े खड़े हो जाते हैं, इस तरह का वेव्स प्रोड्यूस होती कि नहीं होती। इस वहां पे क्या हो रहा है, मैन टू मैन, इस पार्टिकल टू पार्टिकल क्या बोलेंगे अपन, एनर्जी ट्रांसफर होगी। उसके बाद दिस इज अगेन वेलोसिटी ऑफ दैट वेव इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ दैट वेव इज जीरो, देयरफॉर अगेन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेशनरी वेव। इसलिए क्या बोला गया उसको, स्टेशनरी वेव बोला गया, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो क्यों होगी, क्योंकि दो आइडेंटिकल वेव्स है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, टाइम पीरियड सेम है, दोनों सेम पाथ पर मूव हो रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से सुपरइम्पोज हो रही है। एक की वेलोसिटी का प्लस वी कंसीडर करते हो तो इसकी क्या होगी, माइनस वी, टोटल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। इन दिस स्टेशनरी वेव देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एनर्जी विल बी गेट यूज्ड बाय दैट पार्टिकल फॉर द वाइब्रेशन। इस एनर्जी जो रहती है यहाँ पर पार्टिकल्स को पूरी की पूरी टाइमिंग यूज होती है, वाइब्रेशन नहीं यूज होती, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। सो दीस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट स्टेशनरी वेव। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट प्रोग्रेसिव वेव एंड द स्टेशनरी वेव, दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या है, ये प्रॉपर्टीज पर से ध्यान दिया जाएगा। Difference between that progressive wave and stationary wave, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? जैसे यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव क्या बोलते हैं अपन, द वेव व्हिच propagate in a definite direction, the wave which propagate in a definite direction in the medium, that is called as progressive wave। और stationary wave क्या हो रहा था, this is the wave which will be get produced due to the
सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स। इस प्रोग्रेसिव वेव क्या होगी? इट विल propagate in a definite direction like this, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मीडियम में से प्रोपोगेट होगी। लेकिन स्टेशनरी वेव क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, either it is transverse or longitudinal, traveling along the same path but in opposite direction. दूसरा डिफरेंस इसमें ये दिखेगा अपने को, in case of progressive wave there is the transfer of energy from particle to particle. Particle to particle क्या होता है? वहां पे एनर्जी ट्रांसफर होती है and there is no transfer of particle of the medium. पार्टिकल वाइब्रेट होगा मींस वेव मीडियम में से पास हो, इसका मतलब क्या होता है? देयर इज द वाइब्रेशन ऑफ दैट पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम। और पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो प्रोग्रेसिव में क्या होती है? एनर्जी विल बी गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखे कि इन केस ऑफ दैट स्टेशनरी वेव देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू द मीडियम, क्योंकि पार्टिकल पूरी की पूरी एनर्जी का यूज कर रहा है फॉर द वाइब्रेशन। सेकंड डिफरेंस और से ये देखने मिलेगा यहां पर, in case of stationary wave the phase changes from particle to particle। जैसा यहाँ का एक पार्टिकल समझ लो जैसा वाइब्रेट हो गया तो दूसरा पार्टिकल क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा। इसलिए क्या बोलते हैं अपन? in case of that progressive wave there is the change in phase from particle to particle, but in case of stationary wave in one loop all the particles will be get vibrate in the same phase but the particles in the next loop will be vibrate out of phase। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल टू पार्टिकल फेज चेंज होगा। यहाँ पर एक लूप में सभी पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट होंगे। ओके, नेक्स्ट लूप में के पार्टिकल का क्या होगा? फेज चेंज होगा। यस, नेक्स्ट डिफरेंस है। देन इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड कैसा रहता है? वाइब्रेशन का कांस्टेंट रहता है। कौन से वेव में? प्रोग्रेसिव वेव में। लेकिन स्टेशनरी वेव में ऐसा दिख रहा है अपने को, देयर विल बी चेंज इन द एम्पलीट्यूड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। एम्पलीट्यूड चेंज होते जा रहा है, नोड से जब एंटी नोड की तरफ जा रहे हैं अपन तब एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है, और एंटी नोड से जब अपन नोड की तरफ आ रहे हैं तब एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। इस दोनों में का डिफरेंस क्या दिख रहा है एम्पलीट्यूड में? कि प्रोग्रेसिव वेव जो है उस प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट है। तो स्टेशनरी वेव में कैसा है? एम्पलीट्यूड particle to particle change हो रहा है। all the particles are vibrating there but their amplitude of vibration will be get increasing from node to antinode and decreasing from antinode to node। then in this wave there is the transfer of energy। progressive wave से क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन इससे स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, देन इस प्रोग्रेसिव वेव के दो टाइप्स देखे थे अपन ने, एक कौन थी? ट्रांसवर्स, और दूसरी क्या थी अपनी? लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव। अगर ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव सुपरइम्पोज होती है तो क्या मिलेगा आपको? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। अगर लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव सुपरइम्पोज तो क्या मिलेगा अपने को? कौन सी मिलेगी? लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव।